گندم اور آٹا مزید مہنگا، تندور مالکان نے روٹی کے نرخ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں 13 روپے کی روٹی فروخت کرنا ممکن نہیں، حکومت کی جانب سے روٹی کی نئی قیمت نہ دی گئی تو خود طے کر لیں گے۔ فیصل آباد میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ گندم کی قیمت فی من 350 روپے تک بڑھنے کے بعد فلور مل مالکان کی جانب سے آٹے کی قیمت بڑھا دی گئی۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 760 روپے سے بڑھ کر 850 روپے کا ہو گیا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1520 روپے سے بڑھ کر 1700 روپے کا ہو گیا۔ تندور مالکان کہتے ہیں کہ 13 روپے کی روٹی فروخت کرنا ممکن نہیں۔ بے لگام طریقے سے قیمت بڑھائی جاتی ہے، ہر سال یہ بڑھتی ہے۔ اس وقت بھی 20 روپے فی کے جی کے حساب سے بڑھی ہے، جو کہ روٹی کی کاسٹ پہ کم از کم بھی 1.5 روپیہ اضافی چارج ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ روٹی کو پاسبل نہیں ہے کہ 13 روپے کی ہم سرکاری نرخ پہ بیچ سکیں۔ حکومت وقت کو نوٹس لینا چاہیے یا سبسڈی دینی چاہیے۔ دوسری جانب سے شہریوں نے بھی آٹے کی قیمت میں اضافے پر پریشانی کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کام پہلے ہی نہیں ملتا، اب آٹا بھی مہنگا ہو گیا۔ مہنگائی کے دور میں 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ پاکستان میں پہلے حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ ملک کی حالات دیکھتے ہوئے دیکھا جائے تو آٹا کم کیا جائے، جو گندم کی قیمت ہے پہلے ہی کم ہے۔ کسان رو رہے ہیں، یہ قیمت کیسے بڑھا رہے ہیں؟ آٹا تے ہر گھر دی ضرورت ہے۔ غریب تو غریب بندہ بھی نا انہیں ایک ٹائم دی روٹی کھا کے سونی آ۔ ہن آٹے دی قیمت جن اتنا اضافہ کرتا، غریب آدمی تے بل دے تے پریشان سی، وہ آٹا کتوں خریدے گا؟ ایک طرف تندور مالکان کی جانب سے روٹی کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ کیا جا رہا تو دوسری جانب سے شہری آٹے کی قیمت میں کمی کی اپیل کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین رانا ادریس کے ساتھ عزیز احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ جنگ توبہ میں بھی دہاڑی دار طبقے کے لیے ایک اور مشکل۔ حکومت نے آٹے کی قیمتوں میں 14 روپے فی کلو اضافہ کر دیا۔ دوسری طرف تنور مالکان نے روٹی مہنگی کرنے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا۔ چکی آٹا بھی 100 روپے فی من مہنگا ہو گیا۔ حکومت کی ناقص پالیسی کی بدولت غریب کے منہ سے نوالا دور ہونے لگا۔ آٹے کی قیمت میں اضافے نے روٹی کا حصول مشکل کر دیا۔ 2 ہفتے کے دوران آٹا 14 روپے فی کلو تک مہنگا ہو گیا۔ 15 کلو کا تھیلا 1100 روپے سے بڑھ کر 1300 روپے تک جا پہنچا۔ دوسری طرف چکی پر آٹے کی قیمت 3600 روپے سے بڑھ کر 37 روپے فی من ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ طوفانی مہنگائی نے غریب کی زندگی اجیرن بنا دی۔ آٹا مہنگا ہو گیا، ایک غریب آدمی روٹی کھا سکتا ہے، وہ بھی انہوں نے 200 روپے کا اضافہ کر دیا اس میں گٹو کے ساتھ۔ اب بندہ کیا کرے؟ 200 روپے عام آدمی کی پورا دن لگا کے صبح سے لے کے شام تک دکان پہ بیٹھے نا تو پھر بھی پتہ نہیں لگتا کہ 200 روپے آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ آٹے کی بڑھتی قیمتوں سے تنور مالکان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ کہتے ہیں مہنگائی کے باعث 13 روپے میں روٹی بیچنا ناممکن ہے۔ ہوٹل کے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ آٹا 1100 کا ریٹ تھا جی ہفتے پہلے، ایک ہفتے سے 1300 روپے کا گٹو ہو گیا ہے۔ اب 1 روپیہ روٹی بھی ہم بڑھائیں نا تو کمشنر صاحب آ جاتے ہیں جرمانہ کرنے کے لیے۔ توبہ ٹیکسنگ میں شہریوں نے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ 10 کلو آٹے کا تھیلا 780 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ گندم کی قیمت میں اضافے کے باعث آٹے کی قیمت میں اضافہ کیا گیا۔ اس وقت حاضر قیمت 1320 روپے چل رہی ہے۔ آئے روز ہماری کسٹمر کے ساتھ روزانہ اس بات پہ جھڑپ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ ریٹ مہنگا کریں، حالانکہ ہم ریٹ مہنگا نہیں کرتے۔ پیچھے سے مارکیٹ میں اس میں ریٹ کا اضافہ ہوتا ہے اور جو ہم دکاندار کو اضافہ کرنا مجبوری ہو جاتی ہے۔ یہ پہلے جو بیگ تھا نا جو آٹے کا 1120 میں تھا، اب 1320 میں مل رہا ہے۔ غریب آدمی کوئی کیا کرے؟ لوگ جو ہے اتنے پریشان ہیں کہ صبح جو ہے مزدوری کرتے ہیں، 500 سے 700 تک مزدوری ملتی ہے۔ مہنگائی کا دور ہے، کام کی انتہائی قلت ہے، کام ملتا نہیں ہے۔ گندم کی وافر مقدار مارکیٹ میں میسر ہونے کے باوجود آٹے کی قیمتوں میں اضافہ تشویشناک ہے۔ حکومت کو رعایتی نرخ پر آٹے کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے۔ کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41، جھنگ۔ اسکول پرائیویٹائز کرنے پر احتجاج نہیں کرنا، پنجاب سرکار کی احتجاجی اساتذہ سے دو ہاتھ کرنے کی تیاریاں، پیڈا ایکٹ لگانے کی ہدایت کر دی۔ اساتذہ بھی ڈٹ گئے، مطالبات کی منظوری تک احتجاج اور ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب بھر میں حکومتی کارروائیوں کے باوجود اساتذہ کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ صوبائی صدر پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن چودھری محمد صفدر کا سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے سکولز واپسی، اساتذہ کی مستقلی تک احتجاج اور بائیکاٹ جاری رہے گا۔ پینشن اور لیو انکیشمنٹ کے قوانین میں کی گئی ترامیم واپس لینے کا بھی مطالبہ پورا کیا جائے۔ ہمارے جو 3 مطالبات ہیں کہ پیف کو دیے گئے سکولز ان کو واپس کیا جائے، ہمارے بچے واپس کیے جائیں، ہمارے 14,000 اساتذہ کو ریگولر کیا جائے، اور ہمارا جو آخری سہارا ہے پینشن کا، اس میں جو ظالمانہ پالیسیاں ترامیم کی گئی ہیں ان کو فی الفور ختم کر کے
ख़त्म किया जाए, ये हमारे मुतालबात हैं। जनरल सेक्रेटरी कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन मोहम्मद फारूक कहते हैं कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय असातिज़ा के जायज़ मुतालबात तस्लीम करे। ये कार्रवाइयाँ हमें एहतजाज से नहीं रोक सकती। हुकूमत जो है इंतकामी कार्रवाई पे आ गई है, असातिज़ा के शोकाज नोटिस बरतरफियों तक बात आ गई है, जिसके नतीजे में जो फितरती अमल है कि असातिज़ा के अंदर गम व गुस्सा है और असातिज़ा जो हैं वो ज़्यादा शिद्दत के साथ बाइकाट की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। चौधरी मोहम्मद सफदर का कहना था कि इंतकामी कार्रवाइयों से घबराने वाले नहीं, हुकूमत मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो अगले हफ्ते तहसील सतह पर एहतजाज शुरू कर देंगे। हुकूमत असातिज़ा पर पीडा एक्ट लगाने की बजाय मुतालबात तस्लीम करे। हम जीरो पीरियड भी बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद और जड़ावाला के आवाम का दरीना मसला ताबीर पाने के करीब। सेनेटर तलाल चौधरी ने मकवाना ता सैयद वाला रोड की तामीर नो मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज के मशकूर हैं, 2 अरब की खतीर ग्रांट की मंजूरी दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2 अरब रुपए की खतीर ग्रांट से रोड की तामीर का देरीना मसला हल करने की मंजूरी दे दी। सेनेटर तलाल चौधरी का नुमाइंदा सिटी 41 से गुफ्तगू में कहना था कि शहर के तरक्याती कामों के लिए वर्ल्ड बैंक की ग्रांट से जल्द तरक्याती कामों का आगाज किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज हकीकी अवाम की खिदमत कर रही है। मुस्लिम लीग नून मुल्क से बेरोजगारी और महंगाई के खात्मे के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। बड़े हादसा हुए, लोगों की जानें गई, सड़क की खराबी की वजह से लोगों के कारोबार, लोग आना जाना मुश्किल था मजदूरों का। मरियम नवाज साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि पंजाब की पहली सड़कों में से एक सड़क जड़ावाला और सैयद वाला दी है, जो कि मोटरवे तक जाएगी। 2 अरब से ज्यादा लागत से। चक नंबर 65 अवागत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेटर तलाल चौधरी का कहना था कि हम आज मक्कुआना तक सैयद वाला रोड की बहाली और मरम्मत के मंसूबे के इफ्तिताह के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम वज़ीर आला के मशकूर हैं। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए तलाल चौधरी का कहना था कि कल फिर PTI ने 15 अक्टूबर को एहतजाज की काल दी है। ये एहतजाज बाकायदा मंसूबा बंदी से किए जा रहे हैं। आज हम सारे दोस्त इधर जड़ावाला सैयद वाला रोड के इफ्तिताह के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पहली 50 पंजाब की जो सड़कें थी उनमें इसको रखा। कल फिर एक दफा PTI ने 15 तारीख को एहतजाज की कॉल का ऐलान किया है और ये एहतजाज की कॉल ना कोई सियासी फैसला है और ना कोई सियासी जमात ऐसा फैसला कर सकती है जो कि मुल्की मुफाद से टकराता हो। फैसलाबाद जड़ावाला रोड की बहाली और मुरम्मत से शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अरसलान के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। चेयरपर्सन इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग वज़ीर आला पंजाब डायरेक्टरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का टोबा टेक्सिंग का दौरा। अहम इजलास की सदारत की। अफसरान को फील्ड में निकलकर फलाही मंसूबों की मॉनिटरिंग और अवामी फीडबैक लेने की भी हिदायत की। रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु समेत तमाम जिला इंतजामिया के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला के गवर्नेंस बेहतरी के इकदाम पर अमल दरामद और इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि फीडबैक और फॉलो अप पर तवज्जो मरकूज है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का कहना था कि हुकूमत 9 माह से अवामी खिदमत के लिए अमली इकदाम कर रही है। ज़राअत, हेल्थ, एजुकेशन, म्यूनिसिपल समेत इदारों की सर्विसेज के म्यार पर कड़ी नजर। वज़ीर आला के 78 अवामी फलाह के इकदाम पर बर्क रफ्तारी से अमल दरामद जारी, जिसे डैशबोर्ड पर मॉनिटर किया जा रहा है। वज़ीर आला ने सरकारी महकमों और इदारों में सियासी मुदाखलत का रिवाज खत्म, ठेकों में ई टेंडरिंग का आगाज कर दिया। ई टेंडरिंग से 15% तक कम कीमत में ठेके हुए, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। बाबर अलाउद्दीन का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर रूरल हेल्थ सेंटर की अपग्रेडेशन, तज़ीनो आराइश और बहाली का काम जारी, जिससे मरीजों को दहलीज पर इलाज की सहूलियात मुयस्सर आएंगी। अपना घर अपनी छत स्कीम के लिए बगैर सूद कर्ज मिल रहा है। आइंदा बजट में तादाद बढ़ाएंगे। अवाम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में प्लाट खरीदने से इज्तनाब करें। सरकारी दफातर पर अवामी एतमाद मजीद मजबूत बनाना है, जिसके लिए अफसरान को अपने जिम्मे अहदाफ की तकमील के लिए मुतहर्रिक रहने की हदायत की। उनका मजीद कहना था कि हेल्थ और स्कूल काउंसिल्स में एक्टिव मेंबरान को शामिल करके रेगुलर मीटिंग्स मुनक्किद कराई जाए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने गवर्नेंस बेहतरी के लिए इकदाम पर अमल दरामद के हवाले से इजहार इत्मीनान किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम तर तवज्जो सेवरेज, वाटर सप्लाई, शजरकारी, डेवलपमेंट, प्लानिंग समेत दीगर बुनियादी सर्विसेज पर मरकूज है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। टोबा टेक्सिंग में वज़ीर आला मरियम नवाज की मुतवक्की आमद के पेश नज़र ज़िली अफसरान मुतहर्रिक। इंतजामिया ने सड़कों पर तजावुज़ात खत्म करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया। सड़कों की मरम्मत और ग्रीन बेल्ट की सफाई भी की गई। रिपोर्ट देखिए।
टेक सिंह में सड़कों पर तजावजात खत्म करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। असिस्टेंट कमिश्नर अली समीर की निगरानी में टीमों ने शोरकोट रोड, झंग रोड और सदर बाजार में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। सड़कों की मुरम्मत और ग्रीन बेल्ट्स की सफाई भी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर अली समीर ने कहा कि तजावजात के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। शहर में तजावजात को हटाने के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। काफ़ी बार पहले भी इस पे ऑपरेशन किया गया है, लेकिन फिर ये जितने भी टेम्परेरी सेटअप्स हैं ये आके इंक्रोचमेंट कर लेते हैं। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवा रहे हैं, जिसमें कि झंग रोड, गुजरा रोड और जितने भी हमें टेम्परेरी अरेंजमेंट्स नज़र आ रही हैं टोबा टेक सिंह के अंदर, वो हम इंशाल्लाह इसको खाली करवाएंगे और इसको आगे मेंटेन भी करेंगे। ज़िले अफसरान के मुताबिक तजावजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। FDA गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ मुतहरिक मुतअद्दिद पुख्ता और आर्जी तजावजात हटा दी गई। 2 रिहायशी कॉलोनियों की गैर कानूनी तामीरात भी मिसमार। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ये आसफ चौधरी की हदायत पर इन्फोर्समेंट टीम की कार्रवाइयाँ। 2 गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों की तामीरात भी मस्मार कर दी। समुद्री रोड पर मदीना विलाज और सतियाना रोड पर शयान विलाज की तामीरात मस्मार की गयी, जबकि कानून शिकनी पर सर सैयद टाउन में 2 प्लाट्स को सरबमहर कर दिया। गुलिस्तान कॉलोनी में 2 गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई की गई। गैर कानूनी तामीरात रोक कर मालकान के खिलाफ चालान स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में भिजवा दिए। रहायशी कॉलोनियों और कमर्शियल मार्केट्स में नाजायज तामीरात और गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई इन्फोर्समेंट टीम की जानब से स्टेट ऑफिसर अनीफ असलम रंधावा की सरबराही में की गई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में बढ़ते मसाइल इंतजामी गफलत के आईनादार बन गए। उबलते गटर, खले मैन होल, टूटे फुटपाथ और नाजायज पार्किंग से शहरी आजिज आ गए। हुकाम से अफसरों की नाकस कारकर्दगी पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। न्योट के तहसील चौक लाहौर रोड पर खुला नाला हादसात का सबब बनने लगा। आए रोज शहरी नाले में गिरने लगे। शहरियों का कहना था कि करीब ही स्कूल है और बस स्टॉप भी। रोजाना शहरी गिर कर जख्मी हो रहे हैं। मरीज अस्पताल के अंदर ही नहीं बाहर भी खवार। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट के बाहर नाजायज पार्किंग कायम। सरगोदा रोड पर पार्किंग और तजावजात से मरीज परेशान। शहरियों का नाजायज पार्किंग और तजावजात के खात्मे का मुतालबा। सनती इलाके को रिहायशी एरिया में बदलने का इल्जाम। फैसलाबाद के साबिक डिप्टी कमिश्नर अमीन चौधरी रेडार पर आ गए। तहकीकात शुरू। नैब लाहौर ने वापडा सिटी फेज 2 में फाइलों की गैर कानूनी फरोख्त की तहकीकात का आगाज कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद के सनती इलाके को रिहायशी एरिया में बदलने का इल्जाम, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर साबिक डीसी अमीन चौधरी की इंक्वायरी लग गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कमिश्नर को इंक्वायरी करके रिपोर्ट भेजने का हुक्म दे दिया। 830 कनाल अराजी को गैर कानूनी तौर पर रिहायशी एरिया में बदला गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इजाजत के बगैर सनती जमीन रिहायशी इलाका बनाई गई। MS प्रीमियर क्लॉथ मिल्स को गैर कानूनी तौर पर जगह ट्रांसफर की, फीस भी न मिली। 206 कनाल सरकारी अराजी को प्रीमियर क्लॉथ मिल्स की मलकियत जाहिर किया गया। वापडा सिटी फेज 2 में फाइलों की गैर कानूनी फरोख्त के मामले पर नैब लाहौर इन एक्शन। मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। महकमा कोऑपरेटिव हुकाम से फेज 2 की तमाम तफसीलात तलब। नैब की हदायत पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज ने वापडा सिटी फेज 2 में फाइलों की खरीदो फरोख्त तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। सोसाइटी ने फेज 2 में शहरियों को प्लॉट की फाइलें देकर 9 करोड़ 50 लाख शहरियों से वसूल किए। रजिस्ट्रार ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। फेज 2 इंतजामिया को 16 अक्टूबर को कमेटी के सामने पेश होने की हदायत। DACT में प्लाटों की कुरानंदाजी, फंड्स में बेजाब्तगियों का मामला। FDA ने नैब को प्लाटों की तफसीलात फ्राहम कर दी। 10,000 में से 5,258 प्लाटों की अलॉटमेंट की बेल्टिंग की गई। ब्लॉक A और X में 2006 में बेल्टिंग की गई। निजी बैंक के साथ मुआहिदा मनसूख, अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। FDA ने कमर्शियल प्लॉट, अराजी, निजी बैंक का मुआहिदा तफसीलात नैब हुकाम को भेज दी। सिविल डिफेंस फैसलाबाद का LPG की गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ये कोई कबाड़ खाना है ना मशीनों की दुकान, बल्कि ये मनाजिर हैं सिविल डिफेंस ऑफिस फैसलाबाद के, जहां महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से गैर कानूनी LPG रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आ चुका है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासर साहब की एक खसूसी हदायत पे पिछले 2 हफ्ते से हम एक क्रैकडाउन कर रहे हैं, मैसिव क्रैकडाउन, जो LPG की गैर कानूनी डिकेंटिंग और रिफिलिंग शॉप्स हैं उनके खिलाफ। और अभी तक 190 से ज़्यादा जो शॉप्स हैं उनका हमने सामान जब्त कर लिया है
اور ان کو सील कर दिया है। सिविल डिफेंस ऑफिसर का कहना था कि आइंदा 15 रोज के दौरान शहर भर में रीफिलिंग का कारोबार करने वाली कोई दुकान बाकी नहीं रहेगी। इंशाल्लाह पिछले आने वाले कोई 15-20 दिनों के अंदर हम इसका गैर कानूनी कारोबार का शहर से सफाया करेंगे और जो भी बंदा है वो सिर्फ सिलेंडर भरा हुआ सेल परचेज कर सकता है जिसकी गवर्नमेंट ने इजाजत दी है। डेप्यूटी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का कहना था कि शहर से एलपीजी की रीफिलिंग का गैर कानूनी धंधा 100% खत्म कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। विफाकी वजीर की चंडियोट कैंप ऑफिस में खुली कचहरी, साली ने शिकायत के अंबार लगा दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कैंप ऑफिस खुली कचहरी के मौका पर पुलिस समेत इंतजामी अफसरान भी मौजूद थे। कैसर अहमद शेख का कहना था कि मुख्तलिफ औकात के दौरान अफसरान को अवाम के मसाइल हल करने चाहिए। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं ये देखता हूँ कि लोगों के छोटे छोटे मसले हैं, किसी का आइडेंटिटी कार्ड बनना है, किसी के नाली में महल्ले में पानी आ रहा है, किसी को कोई और उससे मिलना है और कोई तालीम की बात करनी है, तो हम जो है ना लोगों को तालीम के लिए फैसिलिटेट करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं अगर वो अपने बच्चों की तालीम नहीं दे सकते तो थोड़ा बहुत जो मैं अपना हिस्सा डाल सकता हूँ वो करता हूँ। कैसर अहमद शेख का मजीद कहना था कि चनियोट शहर के लिए 29 करोड़ रुपए के फंड से काम शुरू करवा रहे हैं। शहर का मुकम्मल सीवरेज सिस्टम अपग्रेड करेंगे। मुल्क के मुआशी इशारिये बेहतरी की जानब गामजन, महंगाई को भी ब्रेक लग चुकी। हमारी जो पाकिस्तानी भाई बाहर है रिकॉर्ड 3 महीने में 8.8 बिलियन डॉलर 3 महीने में भेजे हैं। इसी रफ्तार से अगर बाहर से आएगा पैसा तो ये तकरीबन 35.5 अरब डॉलर होगा। पिछले साल ये 30 अरब डॉलर था। ये भी हुकूमत पे और पाकिस्तान की इकानमी पे और पाकिस्तान के मामलात पे हमारे भाइयों की जो दिलचस्पी है ये भी इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। वफाकी वजीर का कहना था कि लोगों को अद्वियात तालीम के लिए मदद कर रहा हूँ। मुल्क में सरमायाकारी आ रही है और लोगों का एतमाद बढ़ने के साथ साथ मुल्की हालात भी बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं।